Good morning, children. How are you? Welcome to Maths Class 6, Chapter 14, Practical Geometry. At a glance. अभी तक हमने जो पढ़ा है उसको एक नज़र देख लेते हैं पहले. After that, we will start review exercises. In this chapter, we have learned to draw different shapes using the following instruments: ruler, compass, pair of set squares. Number 2. The following figures can be constructed using a ruler and compass only. Number 1. A circle if its radius is known. Number 2. A line segment of given length. Number 3. A copy of line segment. And number 4. A perpendicular to a line through a point on the line and outside the line. And number 5. A perpendicular bisector of a line segment. These all we can draw using ruler and compass. And next we have also learned how a ruler and compass can help us to copy an angle, bisect it and draw some special angles. रूलर और कंपास से हम एंगल को कॉपी भी कर सकते हैं, एंगल को बाइसेक्ट कर सकते हैं और कुछ स्पेशल एंगल्स भी ड्रॉ कर सकते हैं. ये हम लोग सीख लिए हैं इस चैप्टर में चिल्ड्रन. नाउ कम टू रिव्यू एक्सरसाइजेस. पार्ट 5, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 1. अ सर्कल कैन बी कंस्ट्रक्टेड विद द हेल्प ऑफ अ. ऑप्शन नंबर ए रूलर, बी कंपास, C protractor, D divider. Circle can be constructed using compass. The number of perpendiculars that can be drawn from a point not on the line are option number A 1, B2, C3, D इन्फाइनाइट. कह रहा है कि कितना परपेंडिकुलर लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं एक गिवन पॉइंट से. तो थ्रू वन गिवन पॉइंट ओनली वन परपेंडिकुलर कैन बी ड्रॉन. नेक्स्ट, द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए लाइन सेगमेंट मेजरिंग 8 सेंटीमीटर कट्स इट एट. ऑप्शन नंबर ए इट्स एंड पॉइंट, बी 2 सेंटीमीटर फ्रॉम वन एंड, C 4 सेंटीमीटर फ्रॉम वन एंड एंड 6 सेंटीमीटर फ्रॉम वन एंड. 6 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट है चिल्ड्रन. तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मीन्स हुआ इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा, मीन्स कि 4 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट बनाएगा, मीन्स कि 4 सेंटीमीटर फ्रॉम वन एंड इज द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट, एन एंगल ऑफ मेजर 22.5 डिग्री कैन बी कंस्ट्रक्टेड बाय यूजिंग अ रूलर एंड कंपास ओनली. Bisecting 90 degree twice. Bisecting 90 degree twice मीन्स क्या हो चिल्ड्रन? 90 डिग्री को 2 बार बाइसेक्ट करना. 90 को बाइसेक्ट किए तो 45 एंड 45 को बाइसेक्ट करेंगे तो 22.5 डिग्री. 45 का हाफ होता है 22.5. ठीक है, दिस ऑप्शन इज करेक्ट चिल्ड्रन. नेक्स्ट, द एंगल which cannot be constructed using a ruler and compass only is 15 degree. It can be constructed. 22.5 degree it can be constructed. 40 degree it cannot be constructed. So this option is correct. 40 degree cannot be constructed using ruler and compass because we can construct angles which are multiples of 15. Okay, 15 7 ja 105. This is the multiple of 15. So 40 degree cannot be constructed. Next, a ruler and pair of set squares can be used to draw a perpendicular lines. रूलर और सेट स्क्वायर का यूज करके परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, करेक्ट है. पैरेलल लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं, ये भी करेक्ट है. एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, ये भी करेक्ट है. इट मीन्स कि ऑल ऑफ दिस इज द करेक्ट आंसर. नाउ सोल्व मेंटली. ट्रू और फॉल्स. एन एंगल ऑफ 85 डिग्री कैनॉट बी कंस्ट्रक्टेड यूजिंग अ रूलर और कंपास. दिस इज ट्रू चिल्ड्रन.
because 85 is not a multiple of 15. It means it cannot be constructed using ruler and compass. Next, using the two set squares present in the geometry box, an angle of 75 degree can be drawn. This is also true, children, because in set squares, one set square 45 degree and 90 degree angle is there, and in another set square 60 degree, 30 degree and 90 degree angle is there, and 75 means 45 plus 30 degree. So you can draw an angle of 75 degree using these set squares. We will take 45 degree or 30 degree to get 75 degree. That's why this is true. Next, concentric circles have equal radii. This is false, children. Concentric circles means circles having equal same center. ठीक है, circles having same center but different radii. If radii equal होगा children तब तो सेम ही सर्कल हो जाएगा. कंसेंट्रिक सर्कल्स तो होगा नहीं. कंसेंट्रिक सर्कल्स कब होगा? जब सेंटर सेम होगा और रेडियस अलग अलग होगा. जैसे ये एक सेंटर से सर्कल खींचे और यही सेम सेंटर से दूसरा सर्कल खींचे. ठीक है, तो रेडियस अलग अलग होता है, तभी उसको हम कंसेंट्रिक सर्कल कहते हैं. सेम रेडियस का तो सेम ही सर्कल हो जाएगा, कोइंसाइड कर जाएगा सर्कल. नेक्स्ट, देयर इज ओनली वन लाइन ऑफ सिमेट्री इन अ 30 degree, 60 degree, 90 degree set square. This is false, because there is no line of symmetry, because no angles are equal, no two angles are equal. So this triangle is not symmetric. False. Perpendicular to a line from a given point, not on it, can be obtained by paper folding technique. क्वेश्चन है चिल्ड्रन कि किसी भी लाइन पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना जो कि उस लाइन पर नहीं है, पेपर फोल्डिंग के थ्रू ऑब्टेन कर सकते हैं. दिस इज ट्रू. पेपर फोल्डिंग के थ्रू इसको फोल्ड करेंगे चिल्ड्रन इस पॉइंट के थ्रू, तो ये परपेंडिकुलर लाइन होगा, ड्रॉ कर सकते हैं. तो ये ट्रू है. नेक्स्ट, fill in the blanks. If image of points A and B in the line L are P and Q respectively, then PQ is equal to AB. Because image of A is P and image of B is Q, it means कि AB equal to PQ. तो PQ is equal to AB. ठीक है. To bisect a line segment of length 6 cm, the opening of the compass should be more than 3 cm. Opening of compass should be more than half, children. So line segment is 6 cm. So opening of compass is more than half of 6 cm, means कि more than 3 cm. If an angle of measure 60 degree is bisected twice, the angle so obtained measures, bisected twice means children divided by 4, because 60 degree is bisected to get 30 degree, 30 degree is again bisected to get 15 degree. So we will get angle of 15 degree. In an isosceles triangle ABC, the bisector of angle B and angle C meet at O. If angle BOC equal to 140 degree, then angle A measures. Children, एक ट्रायंगल ABC है और एंगल B और एंगल C का बाइसेक्टर O पर मीट करता है. इस तरीके से एंगल O पर मीट करता है. ठीक है, और एंगल BOC 140 डिग्री है. BOC देखिए ये एंगल 140 डिग्री है. तो बाकी इस ट्रायंगल का BOC का जो ये एंगल होगा, एंगल OBC और एंगल OCB दोनों का सम हो जाएगा 40 डिग्री.
क्योंकि तीनों एंगल का सम होता है 180 डिग्री किसी भी ट्रायंगल में। तो ये 40 डिग्री होगा, मीन्स कि एंगल OBC 20 डिग्री होगा, एंगल OCB भी 20 डिग्री होगा। ठीक है चिल्ड्रन, तो एंगल A का मेजरमेंट कितना होगा इस बड़ा वाला ट्रायंगल में? तो ये एंगल हो गया आपका 40 डिग्री, ये एंगल हो गया 40 डिग्री, 40 + 40 80 डिग्री। एंगल B 40 और एंगल C 40 तो 80। तो एंगल A कितना बचा चिल्ड्रन? 100 डिग्री, क्योंकि सम ऑफ 3 एंगल्स इन ए ट्रायंगल इज 100 डिग्री, 180 डिग्री सॉरी। तो एंगल A 100 डिग्री होगा, एंगल B 40 और एंगल C 40, तीनों एंगल का सम 180 होता है। नेक्स्ट, द सेट स्क्वायर्स आर 2 ट्रायंगुलर पीसेज हैविंग एंगल्स ऑफ डैश एंड डैश एट देयर वर्टिसेज। सेट स्क्वायर्स में कितना कितना डिग्री का होता है? एक सेट स्क्वायर तो होता है चिल्ड्रन जिसमें कि 45 डिग्री, 45 डिग्री और 90 डिग्री का एंगल होता है। दूसरा सेट स्क्वायर होता है जिसमें कि 30 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री का एंगल होता है। ठीक है। नेक्स्ट, आंसर इन वन वर्ड और अ लाइन। हाउ मेनी आर्क्स आर रिक्वायर्ड टू बी ड्रॉन टू कंस्ट्रक्ट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। 60 डिग्री का एंगल ड्रॉ करते हैं चिल्ड्रन, तो कितना आर्क्स ड्रॉ करना पड़ता है? देखिए, सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करते हैं, एक सेमी सर्कल ड्रॉ करते हैं, फर्स्ट आर्क हुआ, और सेम रेडियस का फिर दूसरा आर्क कट करते हैं, तो ये 60 डिग्री का एंगल आपका बन जाता है। ठीक है, तो 2 आर्क्स। हाउ मेनी आर्क्स आर रिक्वायर्ड? तो 2। हाउ मेनी सर्कल्स कैन बी ड्रॉन पासिंग थ्रू 2 गिवन पॉइंट्स। अब 2 गिवन पॉइंट्स है चिल्ड्रन, इससे कितना सर्कल पास कर सकते हैं? तो 2 गिवन पॉइंट से मेनी सर्कल आप पास कर सकते हैं इस तरीके से, तो इनफाइनाइटली मेनी होगा, इनफाइनाइट लिख सकते हैं आप, इनफाइनाइट। नंबर 3, हाउ मेनी सर्कल्स कैन पास थ्रू 3 कोलिनियर पॉइंट्स। 3 कोलिनियर पॉइंट से कितना सर्कल पास कर सकता है चिल्ड्रन? अब 3 कोलिनियर पॉइंट्स मीन्स क्या हुआ? 3 पॉइंट्स इन अ लाइन। तो 3 पॉइंट्स इन अ लाइन से कोई एक सर्कल तो पास कर नहीं सकता है, तो 0 होगा। 2 पॉइंट से तो एक सर्कल पास कर सकता है, लेकिन 3 पॉइंट्स और वो भी एक ही लाइन में तीनों पॉइंट्स है, तो सर्कल तो इससे पास नहीं कर सकता है, तो 0 होगा। यूजिंग 2 सेट स्क्वायर्स ऑफ अ ज्योमेट्री बॉक्स कैन यू मेक एन एंगल ऑफ 15 डिग्री। क्या 15 डिग्री का एंगल ज्योमेट्री बॉक्स में जो सेट स्क्वायर्स है उससे बना सकते हैं? तो सेट स्क्वायर में एंगल होता है चिल्ड्रन 45 डिग्री, 30 डिग्री, तो आप 15 डिग्री बना सकते हैं, क्योंकि 45 - 30 कितना होता है? 15 होता है। तो 45 एक ट्रायंगल से बनाएंगे, उसमें से 30 डिग्री कट कर लेंगे, 30 डिग्री को माइनस कर देंगे तो 15 डिग्री बन जाएगा। यस, आंसर होगा यस, बना सकते हैं। टू बाइसेक्ट एन एंगल हाउ मेनी आर्क्स आर रिक्वायर्ड टू बी ड्रॉन। किसी एंगल को बाइसेक्ट करने के लिए कितना आर्क्स बनाना होता है चिल्ड्रन? जैसे देखिए, एक एंगल है ये, इसको बाइसेक्ट करना है तो कितना आर्क्स बनाएंगे? सबसे पहले तो यहाँ से एक आर्क बनाना होता है। ठीक है चिल्ड्रन, यहाँ पर वर्टेक्स, इसको वर्टेक्स लेकर के एक आर्क ड्रॉ करते हैं, फिर यहाँ से एक आर्क काटते हैं, इसका मोर देन हाफ लेकर के, फिर यहाँ से एक आर्क काटते हैं। तो कितना आर्क काटे चिल्ड्रन? 1, 2 और 3। तो मिनिमम 3 आर्क्स, मीन्स कि 3 आर्क्स आर रिक्वायर्ड टू बाइसेक्ट एन एंगल। ठीक है चिल्ड्रन, तो आज के वीडियो में इतना ही। In next video we will discuss and demonstrate the construction given in the let's evaluate. Till then, stay at home, stay safe, keep practicing, keep learning, and if you like this video series, please subscribe the YouTube channel and press the bell icon, and also share the video to the maximum number of students so that you can help many more students even on a single click. Thank you.